Good afternoon to all. Welcome to my channel Educate India. Here we are discussing a new topic: conservation of conser, conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. According to last chapter, we are last video we are discussing the linear momentum. So we know that momentum is defined as a p equals to mass into velocity here p equals to mv, where both are vectors p equals to mv. And the note is that it is depend on the फ्रेम. ये फ्रेम पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम because of velocity that velocity is for according to frame the velocity changes and velocity may be transform. Suppose there is a rotating frame, so velocity of a particle may transform like rotating. So we are discussing that in a rotating frame of reference, that velocity transformation for rotating frame is v dash equals to v plus omega cross r, that we are discussing already. And here not a, here v dash or here v stationary और ये v dash is in rotating frame, velocity in rotating frame. And for a inertial and non-inertial frame, the velocity transformation is different type. Here we are know that v is transformed like v dash plus ut for a frame which are moving some velocity u here be a frame velocity u. So here we are transformation, different type of transformation according to the frame. So the momentum is depend upon the frame which are choosing is a conservative, non-conservative frame, yeah, inertial or non-inertial frame, or it may be a rotating frame. So for a conservation of linear momentum, there's a two cases are there. So first we talk about linear conservation for linear momentum for a particle. तो पार्टिकल के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो so we are know that the Newton's second law that of motion, हम न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं that टाइम rate of change of momentum time rate of change of momentum of a particle is equal to the applied external force, or we can say net force acting on that particle. So we can say that dp upon dt equals to f. Here both are vectors, and suppose there a particle, there a object which move with the velocity v, their momentum is defined as p equals to mv, which are frame dependent, and suppose there is no external force acting on a particle, and the net force on a particle is 0. So for net
net force acting on particle is zero, so therefore 0 p vector del p upon del t equals to 0. So it give a p equals to mv where the is constant हो जाएगा. तो ये हमें बताता है that if no force acting on a particle so the momentum is constant and conserved. मोमेंटम जो होगा कंजर्व्ड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा. अगर हम बात करें if we are talking about that principle, to the linear momentum of particle remains conserved if the net force acting on a particle is zero. So यही conservation of linear momentum यही कहता है if there is no net force on a particle, on a body or particle on a body or particle, there is no net force on a particle, there will be the linear momentum remains conserved and constant. conserved and constant. ठीक है. अगर हम यही बात करें फॉर ए बॉडी सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे अगर हम डालें फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सो सपोज करो देयर इज सम पार्टिकल, देयर इज अ सिस्टम विच आर मेड अप ऑफ different type of particle. Suppose the particle p1, p2, here p3 and p4, and somehow there is pn particle. So pn particle, so having some respective velocities v1 v2 v3 v1 v2 v3 and so on, and having mass also p m1 m2 and m3. So let there be n particles in a system having masses m1 m2 m3 and so on mn तक, and velocities v1 v2 v3 and so on vn तक, and respectively then their momentum is defined as total momentum जो होगा इसका total linear momentum. तो यार p is defined as p1 particle first, p2 for particle second, for p3 and so on plus pn तक, and here p1 जो होगा p1 equals to m1 v1 here, and p2 equals to m2 b2 and similarly pn तक ऐसे चेंज होंगे. तो p equals to हम and the total mass जो होगा and the total mass जो होगा,
एंड टोटल मास जो होगा, टोटल मास, टोटल 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 मास जो होगा, वेयर इज द m इज टोटल मास इज डिफाइंड एज सम ऑफ मासेस, तो m1 m2 m3 एंड सो ऑन प्लस 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 mn तक होगा. सपोज द पार्टिकल इज ए सिस्टम interact with each other, suppose that is for mass अगर हम माने सपोज द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम, सपोज करो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे, तो और हम भी अगर इस पे कोई फोर्स लगाएं इस पूरे सिस्टम पे, और पार्टिकल्स आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो इसकी मोमेंटम को चेंज करेगा. तो जो टोटल मोमेंटम होगी वो, तो हम इसको dp/dt फॉर द फोर्स इक्वल्स टू dp1/dt और dp2/dt एंड प्लस 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 dpn/dt. ऐसे लिख सकते हैं. Now here we can written like dp/dt equals to, here we उसको हम f1 लिख सकते हैं. f1 इससे पहले हमने वो लिखा था ना dp1/dt, तो उसको f1 लिख सकते हैं और इसको f2 और प्लस 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 fn तक लिख सकते हैं. ठीक. हाँ, f1 जो है वो फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल फर्स्ट और ऑफ मास m1, और f2 जो है फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल सेकंड ऑफ मास f2. सपोज करो हमने भी फोर्स लगाया, एक इंटरनल फोर्स भी है, तो जो dp होगा वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा. फिर हमने भी फोर्स लगाया और एक इंटरनल फोर्स भी है, तो dp इज रिटन एज f1 इंटरनल को int लिख देते हैं, int इंटरनल प्लस f1 के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो एक्सटर्नल, ऐसी f सेकंड के ऊपर एक इंटरनल फोर्स होगा जो आपस में ये लोग पार्टिकल लगा रहे हैं, और एक जो हम लगाएंगे मतलब हम जो लगाएंगे फोर्स वो होगा. तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एंड सो ऑन सबके पास ऐसा रहेगा. तो यहाँ प्लस 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 और fn इंटरनल प्लस fn एक्सटर्नल. सपोज इसको हम एक साथ लिख लें, अगर एक साथ लिख लें तो डेट बिकम्स रिटर्न लाइक, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स को एक साथ लिख लें तो यहाँ पे f1 इंटरनल प्लस f2 इंटरनल एंड सो ऑन प्लस 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 fn इंटरनल. इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस इसको f1 एक्सटर्नल. ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारी थ्रू अप्लाइड है, और इंटरनल फोर्स उनके आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे थ्रू द, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं जिसको, जो मास के थ्रू लगता है. तो वो मान लेते हैं चलो उसको. तो ये f एक्सटर्नल प्लस 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 fn तक, fn एक्सटर्नल, इसको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं. तो ठीक है. सिंस द इंटरनल फोर्स एक्शन, सपोज करो f नेट, अब जो इंटरनल फोर्स है उससे पार्टिकल की जो मोशन है वो तो उससे चेंज हो नहीं रहा. इंटरनल फोर्स से पार्टिकल का मोशन क्या चेंज हो रहा है? पार्टिकल में मोशन थोड़ी हो रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा. तो वो जो फोर्स है इंटरनल वाला फोर्स, तो हम इंटरनल फोर्स को क्या कह सकते हैं, ज़ीरो. क्योंकि पार्टिकल के अंदर मोशन नहीं आ रहा है ना,
फोर्स तो लग रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा, फोर्स तो है उसके ऊपर, मोशन नहीं हो रहा। अब मोशन नहीं हो रहा तो मतलब जो नेट फोर्स होगा इन सबका जो सम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही ना, मूव नहीं हो रही, तो इंटरनल सम ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इसको एफ इंटरनल कह सकते हैं, एफ पूरे, हम पूरे को एफ कह लेते हैं, पूरे पूरे सब इन सब के सम्स को हम एफ कह लिया, और प्लस एफ एक्सटर्नल कह लेते हैं। एफ एक्सटर्नल इक्वस टू किसके होगा, ये इक्वस टू में यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी होगा। सपोज करो ये पूरा एफ हेयर एफ इंटरनल जो होगा वो ज़ीरो होगा, ऑब्वियस है ये तो एफ इंटरनल ज़ीरो ही होगा, क्योंकि जो सम फोर्सेस का जो सम होगा, इंटरनल सम होगा वो ज़ीरो होगा। और सपोज करो जो एक्सटर्नल सम, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ये जो होगा नेट होगा, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स और ये नेट इंटरनल फोर्स होगा ये। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो सिस्टम पे हमने सपोज करो ज़ीरो है, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, अरे ये ऐसे हुआ, अगर तुम इस पर कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर है और ये पार्टिकल इस पर फोर्स लगाएगा, दूसरे पार्टिकल पे यही फोर्स इस पर लग रहा है, इस पार्टिकल पे लगेगा, तो आपस में जो फोर्सेस होंगे वो सेम और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। यही कहता है कि दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यही तो कहता है। एक फोर्स ये, एक मास ये है, एक मास ये है, ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, तो ये दोनों आपस में अपोजिट फोर्सेस होंगे, तो वो जो इसका जो दोनों का जो सम करोगे तो ज़ीरो ही होगा। यही तो है एफ वन इक्वस टू एफ वन टू फोर्स ऑन वन बाय टू, फोर्स ऑन वन बाय टू, सही है। और एफ टू वन माइनस होता है ना यहाँ पे, एफ टू वन माइनस इक्वस होता है, तो ये जो होगा ये एफ वन टू प्लस एफ टू वन इक्वस टू ज़ीरो, ये वही बात तो है, इंटरनल फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हैं, दोनों को ऐड करोगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, चलो समझ में आता है, आता है, चलो ठीक है। ये कहाँ था मैं, यहाँ था। ये इंटरनल फोर्स जो होगा ये नेट फोर्स होगा टोटल, ये नेट फोर्स इंटरनल जो होगा वो ज़ीरो होगा। समझ में आया कि दो पार्टिकल आपस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे तो उसका जो सम होगा वो ज़ीरो होगा, तो उसकी वजह से जो टोटल नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो गया। नाउ तो हमारे पास बचा क्या, ये डी पी अपॉन डी टी इक्वस टू एफ नेट एक्सटर्नल बचा, एक्सटर्नल बचा। अगर ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स बचा जिससे बॉडी मोशन में जाएगी, जिससे बॉडी मोशन में जाएगी, तो द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज़ ज़ीरो। सपोज करो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ज़ीरो हो जाए, अब बॉडी मोशन में नहीं है, उस पर जो फोर्स है वो ज़ीरो है, उस पर कोई भी फोर्स नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है, तो यहाँ डी पी अपॉन डी टी इक्वस टू ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो पुट करेंगे तो डी पी अपॉन, तो यहाँ पे पी जो होगा वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वाला कांस्टेंट हो गया। सो ये पी इज कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या बताता है, इफ़ द नेट फोर्स, इफ़ द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम, सिस्टम ऑफ, सिस्टम की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने SETEM, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, system of particle is zero if the net force of a system of particle is zero, comma the total linear momentum, यहाँ एक की बात नहीं कर रहे, एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे, टोटल जो होगा सम होगा जो सबका, टोटल लीनियर मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, पी वेक्टर ऑफ द सिस्टम, किसका, सिस्टम का, ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यही एक पार्टिकल की जो हमने अभी पीछे बात करी, फॉर ए पार्टिकल, वही बात यहाँ पे है। अगर उस पर नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा, तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, मतलब मोमेंटम उसका कंजर्व्ड रहेगा। तो इसको ही हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम,
system its total linear momentum is conserved। तो ये क्या बताता है, अगर उस पर कोई पार्टिकल पे मतलब पूरा सिस्टम है, यहाँ पे नोट एक नोट कर लो। और अगर पूरा यहाँ पे हमने पूरे की बात करी है, तो यहाँ पे जो पी है, पी जो है वो पूरा टोटल लीनियर मोमेंटम है वो। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें यहाँ पे, मतलब P1 या और P2 की बात करें, तो वो पक्का नहीं है कि वो हाँ मतलब वो कंजर्व होगा या नहीं। यहाँ टोटल जो उसका सम होगा वो कांस्टेंट है। ये तो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जो इनका समेशन होगा वो कांस्टेंट आएगा। मतलब P1 प्लस P2 ऐसे Pn तक करोगे, Pn तक जितने भी हमारे पास पार्टिकल हैं उसका जो सम है वो कांस्टेंट आएगा, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई एक्सटर्नल या नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो। ठीक है, ये यहाँ पे अब जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा तो उसका मोमेंटम हमें पर क्या बताता है, मोमेंटम इक्वल्स टू एम बी है। एम बी ये क्या बताता है, ये हमारे पास डिफाइन करता है इफेक्ट ऑफ मोशन बाय द बॉडी इफेक्ट ऑफ मोशन बाय द बॉडी। क्या इफेक्ट हुआ मोशन का, क्या इफेक्ट है बॉडी के, मतलब बाय द बॉडी क्या मोशन का इफेक्ट दिखा रही है। जब उसका ये कंजर्व्ड रहेगा, जब उसको लीनियर मोमेंटम मतलब पी जो जब उसका कंजर्व्ड रहेगा तो उसमें चेंज होगा उसके मोशन में चेंज होगा या नहीं, बताओ। पी कंजर्व्ड है उसका, तो उसमें उसके मोशन में चेंज होगा या नहीं, मतलब वो मोशन में होगा या नहीं। क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर उसका पी जो है कंजर्व्ड है तो जो बॉडी है तो कंजर्व्ड है, सो बॉडी आर इन मोशन और नॉट, सो बॉडी आर इन मोशन और नॉट, ये क्वेश्चन है मेरा। अगर उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है तो वो बॉडी मोशन में है या नहीं। देखो भाई, इसका आंसर तुम लोग ढूंढ के आना, तुम्हें मिले तो कमेंट में रिप्लाई कर देना, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे समाप्त होता है। ये मतलब मोमेंटम हमने काफ़ी कुछ पता करा मोमेंटम के बारे में, कि ये फ्रेम पे डिपेंड करता है, मतलब टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करेगा, टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करेगा। ये कंजर्व्ड रहता है पार्टिकल के लिए कंजर्व्ड रहेगा, कंजर्व्ड है पार्टिकल के लिए, और सिस्टम के लिए भी कंजर्व्ड है, उस पर अगर कोई नेट फोर्स ज़ीरो है तो। अब अगला टॉपिक हमारे पास हम लेंगे सेंटर ऑफ मास। उससे पहले आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ पे जो सिस्टम था वो एक्चुअल में आइसोलेटेड सिस्टम था। आइसोलेटेड सिस्टम आर दो सिस्टम इन विच द नेट फोर्स इज़ ज़ीरो। नेट फोर्स उसको अगर हम डिफाइन करेंगे उस सिस्टम के लिए तो वो कम्स टू ज़ीरो आएंगे, मतलब ज़ीरो हो जाएंगे। आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं वो, जहाँ पे जो फोर्सेस होते हैं वो ज़ीरो होंगे। आइसोलेट होगा मतलब कि उस पर कोई फोर्स ही ना लग रहा हो। कुछ दो फ्रेम के बारे में हमने जाना था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम इन विच आर नॉन एसिलेटेड और नॉन एसिलेटिंग फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। मतलब कोई रेस्ट में फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम जो होंगे, रेस्ट फ्रेम और ये मूविंग फ्रेम हो, लेकिन उनमें एक्सीलेशन ना हो। रेस्ट हो तो वो तो हो गई है, वो तो होगा। रेस्ट फ्रेम है तो वो तो है इनर्शियल फ्रेम। और एक मूविंग हो विदाउट एक्सीलेशन, जहाँ पे एक्सीलेशन ना हो, वेलोसिटी जो हो, एक्सीलेशन ना होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और यहाँ पे न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम लगता हो। तीसरा तो खैर लगेगा ही, तीसरा तो लगता ही है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन से थे हमारे पास, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहाँ पे जो ये है वो
इसके ऊपर, हाँ एक पॉइंट यहाँ पे, अगर यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा किसी बॉडी के ऊपर तो बॉडी उसके पास एक्सीलेशन भी 0 होगा। यहाँ पे एक्सीलेशन अगर 0 है किसी बॉडी के ऊपर तो उसके ऊपर फोर्स भी 0 मिलेगा। ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी इनर्शियल फ्रेम के लिए। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो वो एक्सीलेटिंग फ्रेम होते हैं, एक्सीलेट करते हैं वो, तो एक्सीलेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे और जो एक्सीलेट करेगा तो अगर वो रुका हुआ भी है, अगर रेस्ट में है, तो उस पर अगर सपोज करो एक्सीलेशन उस पर ऊपर 0 है, क्योंकि वो हमने सपोज करा रेस्ट में है, लेकिन फोर्स उसके ऊपर 0 नहीं होगा, तो फोर्स 0 नहीं होगा। अगर सपोज करो वो फोर्स उसके ऊपर 0 है तो उसके ऊपर एक्सीलेशन हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सीलेटेड फ्रेम होते हैं, तो यहाँ पे एक्सीलेटेड डाल दो, एक्सीलेटेड फ्रेम है ये नॉन एक्सीलेटेड फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम है, एक्सीलेटिंग फ्रेम है। सही है भैया, इतना कुछ समझ लिया है। अब 2 लेक्चर और बनेंगे, एक सेंटर ऑफ मास के ऊपर, एक 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म है। सेंटर ऑफ मास और हमारे क्या रह गया, सेंटर ऑफ मास रह गया है और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रह गया है। सेंटर ऑफ मास अब वीडियो लेंदी होती है तो स्टॉप करते हैं। थैंक यू टू ऑल। आज हमने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम मोमेंटम पता है मास इनटू वेलोसिटी, मास हमें पता है mv होता है, mv, और नोट करो यहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो स्पेस एंड टाइम पे डिपेंड करेगा। तो जब हम रोटेटिंग फ्रेम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऐसे वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और हम जब एक्सीलेटेड फ्रेम चूज़ करते हैं या फिर मतलब फ्रेम चूज़ करेंगे जो जिसके पास वेलोसिटी फ्रेम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप का होता है। यहाँ पे u क्या है, फ्रेम की वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट है और ये चेंज होती है तो यहाँ पे चेंज करते हैं, यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक्सीलेशन प्लस v हो जाता है, वेलोसिटी के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये पार्टिकल के लिए हमने पता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द नेट फोर्स के इक्वल होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है। तो हमने लिख दिया न्यूटन्स का दूसरा नियम यही कहता है। इसको अगर हम देखें तो दूसरा नियम यही है। अगर ये पर्टिकुलर केस देखें तो इसका पर्टिकुलर केस ये रहा, इसका F=m1, जहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है और एक्सीलरेशन a होता है यहाँ पे। तो v=p, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसका जो मोमेंटम है वो p से डिनोट करेंगे, उसको p×v लिखेंगे। और ये दिखाता क्या है, ये कितना इफेक्ट ऑफ मोशन दिखाता है। ये बॉडी के थ्रू बॉडी कितना इफेक्ट ऑफ मोशन शो कर रही है। अगर ये मोमेंटम, यही बॉडी किसी दीवार से आकर टकरा जाए तो वो बॉडी पे कितना फोर्स, दीवार पे कितना फोर्स लगेगा वो हम बता सकते हैं मोमेंटम उस पॉइंट पे निकाल के उस पर मोमेंटम निकाल लो, और कितनी बॉडी बैक उसके टकराने के बाद वापस आ जाएगी वो भी हम बता सकते हैं, कितनी वेलोसिटी से वो रिवर्स हो जाएगी, जिसके लिए फॉर्मूला है F1u1। यही कंजर्वेशन के लिए फॉर्मूला है F1u1 m1u1 इक्वल्स टू m2 m1v1 m1u1 इक्वल्स टू m1v1। ये एक सिंगल बॉडी के लिए फॉर्मूला था, जहाँ पे जो फोर्स होगा वो सेम रहेगा। अगर टू बॉडी के लिए हम बात करें तो यहाँ पे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। 3 बॉडी के लिए भी इसमें ऐड हो जाता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये 1 बॉडी के लिए हमने देखा था, u हो जाएगा यहाँ पे मास जो है दोनों सेम रहेगा। तो जो ये हमने 12th में आपने पढ़ा होगा इलास्टिक कॉलिजन, ये उसका टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करते। फिर हमने अगर हम सिस्टम के लिए बात करें तो सपोज़ करो ये सिस्टम है, इसके ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके पास
जिसके मास डिफरेंट डिफरेंट है m1 v1 एंड वेलोसिटीज़ भी उसके पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो सम ऑफ मोमेंटम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, एंड जो सम ऑफ मोमेंटम के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, एंड टोटल मास जो होगा वो m होगा उसका। टोटल मास अगर m है तो यहाँ पे जो मोमेंटम में जो यहाँ पे मास लिया जाएगा इस वाले मोमेंटम के लिए वो m लिखा जाएगा। तो वो कितना है, सम ऑफ टोटल मोमेंटम। तो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे जो मास यहाँ पे जो मोमेंटम है, यहाँ पे जो p हमने यूज़ किया है, यहाँ पे जो m होगा वो कैपिटल M होगा। इस बात को नोट कर लें। यहाँ पे जो कैपिटल M होगा वो कैपिटल M लिखा जाएगा, m v वेलोसिटी v m v वेलोसिटी यहाँ पे जो भी हमने वेलोसिटी उसके पास प्रोवाइड होगी, लेकिन मास यहाँ पे कैपिटल लिखा जाएगा क्योंकि ये टोटल है यहाँ पे, टोटल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोर्सेस को हमने काउंट करा। अगर इंटरनल फोर्सेस थ्रू द पार्टिकल इन बिटवीन द पार्टिकल में इंटरनल फोर्सेस होंगे तो वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो उनका जो समेशन नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ओके। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी हमने अगर ज़ीरो मान लिया, अगर एक्सटर्नल फोर्स भी हमने ज़ीरो मान लिया तो उसका जो डी पी अपॉन डी टी होगा वो एफ नेट के इक्वल होगा, एफ नेट एक्सटर्नल के इक्वल है। अगर हमने एफ नेट को ज़ीरो माना तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करा तो पी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया। इफ़ द पार्टिकल इफ़ द नेट फोर्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल इज़ ज़ीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम पी, जिसको हम नोट करेंगे पी इक्वल्स टू एम वी। एम यहाँ पे लेंगे कैपिटल एम, टोटल मास ऑफ ए सिस्टम, और पी यहाँ पे पी होगा, वो होगा कंजर्व्ड रहेगा और रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। कंजर्व्ड और कांस्टेंट दो अलग चीज़ें होती हैं। कंजर्व्ड का मतलब होता है कि वो जो कंजर्व्ड है यहाँ पे कि वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि कंजर्व्ड है वो। कंजर्व्ड मतलब चेंजेस ना होना, कांस्टेंट मतलब कि वो एक कांस्टेंट नंबर होना। कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट। ठीक, नोट हमने पॉइंट ये नोट करा कि जो P होगा, P जो होगा वो अगर यहाँ पे P कंजर्व्ड है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल का P1 और पार्टिकल्स का भी कंजर्व्ड होगा। यहाँ पे इनका समेशन कंजर्व्ड रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वो कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये P जो होगा यहाँ पे कैपिटल M लिखा जाएगा। ये बात हमने पहले ही बता दी आपको। ये और ये मोमेंटम बताता क्या है, मोमेंटम बताता है इफेक्ट ऑफ मास बाय बॉडी इफेक्ट ऑफ मास बाय बॉडी। और ये मोमेंटम फ्रेम डिपेंडेंट फंक्शन है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। इट मीन्स टाइम एंड स्पेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी। और ये वेलोसिटी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अगर हम फ्रेम को चेंज कर दें, मतलब रोटेटिंग फ्रेम लें या इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के थ्रू इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। काफ़ी कुछ हमने जान लिया। पी कंजर्व्ड रहेगा फॉर ए मोशन सो बॉडी ऑफ नॉट, मतलब पी अगर कंजर्व्ड है तो बॉडी मोशन में होगी। हमने क्वेश्चन था तो इसका कमेंट आप कर देना, इस क्वेश्चन का कमेंट आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको हमने एक वीडियो में और डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने यही बताया था। तो यहाँ पे एक बार और दोबारा समझा देते हैं। डेट इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम डेट यहाँ पे इनर्शियल चलो आपको बता ही दिया, उससे पहले अच्छे से समझाया था, तो वहाँ पे भी देख लेना, वरना यहाँ पे हमने बता ही दिया अच्छे से। ठीक है, एसिलेटेड नॉन एसिलेटेड का डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, थैंक यू। नाउ ओवर।